নমস্কার, জয় হিন্দ। আমি ইলমাস সৈয়দ, আর আপনারা দেখছেন বীর গাথা। ইস্টার্ন কমান্ড বেঙ্গল সাব এরিয়া হেডকোয়ার্টার্স ইন অ্যাসোসিয়েশন অফ মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স আর মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন সেকেন্ড রাজপুতানা রাইফেলসের ওয়েপন্স ডিসপ্লে নিয়ে এসেছে শহর কলকাতায়। অর্থাৎ ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে, অর্থাৎ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ফরওয়ার্ড এরিয়াজে, অপারেশনসে, যুদ্ধে যে যে সামরিক ওয়েপন ব্যবহার হয় সেই সামরিক ওয়েপন আজকে কিছুক্ষণের জন্য আম জনতার জন্য খুলে রাখা হয়েছে এবং সেই একটা সেই অস্ত্রগুলোই আপনাদের সামনে তুলে ধরবো আমরা আজ এনকে টিভি বাংলার এই বিশেষ অনুষ্ঠানে। বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা সেকেন্ড রাজরিফের এটাই মোটো, আর এই মোটোর সঙ্গে নাম নামক নিশানের মোটোকে একসঙ্গে করে সেকেন্ড রাজপুতানা রাইফেলস ভারতবর্ষের সীমানা, ভারতবর্ষের সুরক্ষার প্রতি তারা অটুট নজর রেখেছে। কিন্তু তাদের এই জার্নিতে কোন কোন সামরিক অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়, কোন কোন অস্ত্রের ওপর এই মুহূর্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী, তার জওয়ানরা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশনাল প্রিপেয়ারনেস দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই সমস্ত অস্ত্র কোথা থেকে বানানো হয়, কিভাবে ব্যবহার করা হয়, আজকের আগামী 20 মিনিটে স্নিক পিক এক্সক্লুসিভ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অস্ত্র ভাণ্ডারে। যুদ্ধ, আর যুদ্ধে যে কোনো সেনাবাহিনীর কাছে, যে কোনো সৈন্যর কাছে তার অস্ত্র সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। সেই অস্ত্রের মধ্যে 2-3টে পার্ট হয়, যেমন ইন্ডিয়ান স্মল আর্ম সিস্টেম কিংবা ইনসাস। সেই ইনসাস রাইফেল রয়েছে, কোন রাইফেলকে কি বলে, কোন রাইফেল থেকে কি লঞ্চ করা হয়, কোনটা থেকে গুলি চলে, কোনটা থেকে গ্রেনেড লঞ্চ করা হয়, সেগুলোই দেখাবো। রাম सुमित साहब, तो ये क्या है सर? पहले इंसास राइफल के ऊपर लगा हुआ है 40 mm यूबीजीएल अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। इसका काम है सर, ग्रेनेड निकलता है। यस सर, इसका काम है ग्रेनेड लॉन्च करना और दुश्मन को बर्बाद करना। और इसका रेंज कितना होगा? रेंज है सर इसका 400 मीटर। मतलब 400 मीटर में कोई दुश्मन अगर रहेगा बिल्कुल तो सर, उसको गोली से या ग्रेनेड से ये गन नास्ता नबूद कर सकता बिल्कुल बिल्कुल सर। है। ये बोर है 5.56, राइफल है 5.56 और यूबीजीएल है 40 mm। 40 mm का। यस सर। सर ये कहाँ कौन सा एरिया में डिप्लॉयड होता है? फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉय होता है? कौन सा ऑपरेशन में डिप्लॉय होता है? हाँ, ये फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयड होता है और सर पीस टाइम पे इसकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। जी, आगे वाला स्नाइपर्स है। স্নাইপার অর্থাৎ লং রেঞ্জ রাইফেল, দূর থেকে যে টার্গেটকে যখন নিশানা করতে হয় সেগুলো হচ্ছে স্নাইপার। কিন্তু স্নাইপার দেখানোর আগে দেখাবো লাইট মেশিন গান 7.62 mm, লাইট माफ करবেন 5.56 mm लाइट मशीन गन LMG। सर ये LMG कहाँ पे यूज होता है? ये भी सर पीस और फील्ड दोनों में यूज किया जाता है। ये क्या सर एक ऑटोमेटिक वेपन है और थोड़ा रेंज 700 मीटर तक है इसका, तो लंबे रेंज पे एनिमी को मारने की काबिलियत रखता है वेपन। অর্থাৎ দূর অবধি 700 মিটার, প্রায় 1 কিলোমিটারের কাছে যখন এনিমি আসে তখন এই LMG রাইফেলস ইউজ করা হয়। এই LMG রাইফেল যেটা দেখা যাচ্ছে এটা ক্যামোফ্লাজ রাইফেল, ক্যামো কালার করা। दिस इज द नॉर्मल ब्लैक पेंटेड राइफल। सर मैगजीन कैपेसिटी कितना होता है इसका? 30 राउंड है सर इसका मैगजीन। 30 राउंड और 30 ही फिल होता है। हाँ 30 ही फिल होता है सर इसका ম্যাগাজিন, এর মধ্যে 30টা রাউন্ড থাকে। এখান থেকে টার্গেট নিয়ে ফায়ার, बर्स्ट फायर पे होता है, सिंगल फायर पे होता है। हाँ सर, ये 2 मोड में फायर करता है, सिंगल शॉट और ऑटो फायर। अगला कौन सा हथियार दिखाओगे? ये है सर AK-47। अच्छा, द फेमस AK-47। सर ये भी सर 3 मोड में फायर करता है, सेफ, सेमी ऑटो और फुली ऑटोमेटिक। ये फॉरवर्ड एरियाज, काउंटर इंसर्जेंसी में बिल्कुल बिल्कुल सर, ये फॉरवर्ड एरियाज में CICT में हर जगह यूज होता है। एक क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए सबसे बेहतर हथियार। मतलब ক্লোজ কোয়ার্টার ব্যাটল মানে হচ্ছে খুব কাছের যখন লড়াই হয়, যখন দুশমন অর্থাৎ শত্রুপক্ষ এবং আমাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীরা খুব ক্লোজ রেঞ্জ থেকে লড়াই করে। স্যার ये AK-47 ये ऑपरेशनल कितना सहूलियत देता है ऑपरेशन में? वेपन कैसा है?
सर ये एक ऐसा वेपन है जो आप किसी भी ऑल वेदर ट्रेन में कामयाब वेपन है सर ये, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी इसकी खासियत वेपन की है, इसमें रोक नहीं पड़ती फायर करते टाइम। सर अगला कौन सा दिखाओगे? स्नाइपर। স্নাইপার রাইফেল, লং রেঞ্জ রাইফেল, অনেক দূরে বসে দূরের টার্গেটকে যদি এলিমিনেট করতে হয় তার জন্য এই स्नाइपर राइफल থাকে। सर ये स्नाइपर राइफल ऊपर तो हो गया टेलीस्कोप, और इसका रेंज कितना हो जाता है? रेंज है सर इसका 800 मीटर। मतलब 800 मीटर में कोई भी टारगेट को एलिमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर ये फायर कैसे करता है? फायर सर नॉर्मल मैगजीन लगाना है। छुप छुप छुपा रहता है। हाँ बिल्कुल सर, ये ऑलरेडी फायरर भी कम हो रहता है और राइफल भी ऑलरेडी कम हो रहती है इसमें। স্নাইপার্স লং রেঞ্জ থেকে এনিমি কমান্ডারকে কিংবা কোনো লাইট ভেহিকলকে তার ভেতরে থাকা শত্রুপক্ষকে নাস্তানাবুদ করতে এলিমিনেট করার জন্য এই বন্দুক इंडियन आर्मी ऑपरेशनल रेडनेस। सर अब क्या दिखाओगे? ये सर PNVG पैसिव नाइट विजन गॉगल। नाइट विजन गॉगल। यस सर। ये क्या है सर, एक सर्वेलेंस इक्विपमेंट है जो नाइट में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कारगर है। ठीक है सर, आप अंधेरे इलाकों में, CI इलाकों में या ड्यूटीज़ के दौरान ये काफ़ी हद तक कामयाब। मतलब रात को देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सर, 200 से 300 मीटर तक आप डिटेक्शन भी करेगा और रिकॉग्नाइज भी कराएगा टारगेट। যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক তো থাকে না, ল্যান্ডলাইন থাকে না, বেস থেকে ফরওয়ার্ড এরিয়ার কমিউনিকেশন কিভাবে হয়, অর্থাৎ কিভাবে কোনো সেনা টুকরি যারা ফরওয়ার্ড এরিয়াতে পোস্টেড আছে তারা কিভাবে তাদের বেসে কমিউনিকেট করে, তখন আসে এই রেডিও সেট स्टार V। राम राम साहब, साहब ये इसका उपयोग कहाँ है, कहाँ इस्तेमाल होता है? ये लंबी रेंज कम्युनिकेशन के लड़ाई के दौरान यूज किया जाता है। इसका रेंज है अधिक से अधिक 25 किलोमीटर, नॉर्मल रेंज है 5 से 7 किलोमीटर, टेम्परेचर -30 से +55 डिग्री टेम्परेचर में काम करता है। ग्लेशियर में भी चल जाए? हाँ, ग्लेशियर में भी यूज हो सकता है। और ये वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है? ये वन वे कम्युनिकेशन। और सर ये जब जैसे जंग का मैदान हो या कहीं ऑपरेशनल ग्राउंड हो तो वहाँ का जो टेरेन है, रफ टेरेन है, वो सह लेती है ये इक्विपमेंट? किसी भी प्रकार के टेरेन में इसको हम यूज कर सकते हैं। অর্থাৎ লং রেঞ্জ কমিউনিকেশনের জন্য প্রায় 25 কিলোমিটার দূরত্বে এই কমিউনিকেশনে সেনাবাহিনী নিজেদের মধ্যে সমান্তরাল ঘটিয়ে রাখে। এবার আসি সেনাবাহিনীর আরেকটি লঞ্চার 30mm AGS, রাশিয়ান মেড, 10 কিলোগ্রাম ওজন, 30 মিলিমিটার বোর। এটি একটি লঞ্চার, এবং এটা কোথায় ইউজ হয়, এটা কিভাবে ইউজ হয় জিজ্ঞেস করবো। রানা সাহেব, सर ये लॉन्च क्या करती है? ये है माउंटेन इलाके में जब हम कहीं कोई युद्ध चल रहा होता है तो हम राइफल से अगर दूरी ज़्यादा है दुश्मन की तो हम इसको 1776 मीटर तक यूज कर सकते हैं। अगर 1776 मतलब लगभग 2 किलोमीटर। हाँ, लगभग 2 किलोमीटर। अगर डायरेक्ट दुश्मन दिखाई दे रहा है तो हम इसको शिस्त लेके 800 मीटर तक यूज कर सकते हैं। अगर दुश्मन हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हम इसको क्या है इनडायरेक्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट तरीके के लिए हम इसको 1776 मीटर तक यूज करते हैं। अगर दुश्मन सीधा दिखाई दे रहा है तो हम शिस्त लेके 800 मीटर तक यूज कर सकते हैं इसको। मतलब टारगेट लेके 800 मीटर तक। 800 मीटर में अगर कोई भी टारगेट रहेगा एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ, एलिमिनेट होगा। इसमें 28 ग्रेनेड आते हैं बॉक्स में, तो एक बार कॉक करने के बाद में 28 ग्रेनेड फायर कर सकते हो आप। এর ভেতর 28টা গ্রেনেড থাকে, 1776 মিটার অবধি যায়, 800 মিটার অবধি নর্মাল রেঞ্জে একেবারে নিশানা নিয়ে টিপ করে যারা শত্রুপক্ষ তাকে এলিমিনেট করা যায়। ভাবুন, এই হাতিয়ার যে ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে আছে, সেই ইন্ডিয়ান আর্মি ইজ নট অনলি ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট সিভিলাইজড আর্মিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, বাট অলসো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল আর্মিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। মেশিন গানস, মিনিয়ন মেশিন গানস। যুদ্ধক্ষেত্রে এই দুটো বন্দুক এদের
অত্যন্ত অবদান থাকে। এই মেশিন গান কত রেঞ্জে ফায়ার করে, एनिमी के ठीक কিভাবে टेक आउट करे? राणा साहब सर, ये जो मशीन गन्स है, मीडियम मशीन गन्स है, इसका काबिलियत कैसा है, ये कहाँ यूज होता है और कितना रेंज तक चलता है? सर ये बटालियन का फायर सपोर्ट वेपन है। ये इसका मैक्सिमम कारगर रेंज 1800 मीटर है। ये हमारी सेना को दुश्मन के बंकर के नज़दीक से नज़दीक पहुंचाने का कारगर बढ़िया कवर फायर देती है। कवर फायर देती है। हमारी सेना दुश्मन के नज़दीक तक पहुंचने के लिए इसका फायर खूब बढ़िया है और हम दुश्मन को एंगेज करने के लिए इस एमएमजी गन का उपयोग करते हैं। ये एमएमजी कितना इफेक्टिव है सर? ये एमएमजी सर इसका 1800 मीटर तक तो काफ़ी कारगर रेंज है और 3900 मीटर पे जब इसके राउंड की जो रफ्तार होती है 108 मीटर प्रति सेकंड रहती है, उस टाइम भी इसका जो राउंड होता है वो काफ़ी घातक रहता है। ঘাতক रहता है मतलब অত্যন্ত ড্যামেজ করতে পারে। যখন ফরওয়ার্ড টুকরি কিংবা ঘাতক টুকরি তারা আগে যায় তখন তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, তাদেরকে কভার করার জন্য যে বন্দুক থেকে ফায়ার করা ইউজ হয় সেগুলো হচ্ছে এই মিডিয়াম মেশিন গানস, এমএমজিস। আর এই মিডিয়াম মেশিন গান যখন কথা বলে তখন আচ্ছা ভারতের শত্রুপক্ষ তারাও কিন্তু চুপ করে যায়। और ये एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है, मतलब इसी से यूज करके कोई भी एरियल व्हीकल को गिराया जा सकता है। এমএমজি দেখলাম, এবার দেখবো বোফোর্সের কথা শুনেছি আমরা, কিন্তু বোফোর সব জায়গায় যেতে পারে না, এটা যেতে পারে। 81 mm मोटार, राइट सर? सर ये मोटार का काम कैसा है, ये लोड कैसे होता है, ये फायर कैसे होता है? ये मजल लोडेड है और मतलब ऊपर से लोड होता जी मजल है। लोडेड ये है आपका फोर साइड साइड यूनिट मजल प्रो। इसी की मदद से हम इसके ऊपर लाडर लगाते हैं और को ले करते हैं और फायर करते हैं। मतलब अगर फील्ड में ये फील्ड में किस काम में आता है? ये दोस्त फायर सपोर्ट देने के लिए, हमारी सेना को कवर फायर देने कवर फायर देने के लिए। অর্থাৎ এই যে 81 mm মোটার, ফিল্ড মোটার্স বলে এগুলোকে, ওপর থেকে মাজল থেকে লোড হয়, লোডের পর এখান থেকে টার্গেট ফিক্স করা হয়, টার্গেট ফিক্স করে হয়ে ফায়ার করা হয়। কভার সাপোর্ট ওয়েপন, ঘাতক টুকরা কিংবা অ্যাটাক প্লাটুন যখন আগে যায় তখন পেছন থেকে ব্যাটালিয়ন সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, কভার সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এই মোটার ইউজ করা হয়। তবে এটা মোটারটা দেখলেন, এই মোটারে এর অ্যামিউনিশন কি? এর অ্যামিউনিশন আছে এইগুলো। सर ये 3 अलग अलग मिसाइल्स देख रहे हैं, मोटर एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स देख रहे हैं, कौन सा क्या है सर थोड़ा बताना। ये साहब HE बॉम्ब है, हाई एक्सप्लोजिव, और ये इल है, इल्यूमिनेशन के लिए होते हैं ये, और ये रोशनी देती है रोशनी के लिए, और ये एक्सप्लोजिव हाई एक्सप्लोजिव बम है ये HE के। हाँ, दोनों अलग। तो अगर रात का टाइम पे जहाँ बटालियन या पलटन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो रात में अगर थोड़ा रोशनी देना होता है तो तब ये फायर होता है। जैसे दुश्मन हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको देखने के लिए फर्स्ट में इसको फायर कर देंगे, ये ऊपर फट जाएगा, इसकी रोशनी होती है, 20 से 30 सेकंड तक इसका टाइम होता है, और फिर इससे हम वापस फायर करके दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। अच्छा, अब आता है सेकंड जो वेपन है, ये फिनलैंड का वेपन है, फिनलैंडের वेपन সাকো TRG-42। এটাও একটা স্নাইপার, अनदर काइंड অফ স্নাইপার, এবং এই স্নাইপারেও লং রেঞ্জ স্নাইপার, ফিনল্যান্ড থেকে এসছে, 5.5 কিলোগ্রাম ওজন, এবং এই স্নাইপারও ইউজ করা হয় দূর রেঞ্জে কোনো রকম শত্রুপক্ষ থাকলে তাকে এলিমিনেট করা যায়। স্যার ये साको TRG, इस गन का खासियत क्या है? इसका किलिंग पावर ज़्यादा है, कमांडर को मारने के लिए स्पेशल। एक गोली एक दुश्मन, এক গোলি এক দুশ্মন, একটা বুলেট একজন শত্রুপক্ষ, এবং শত্রুপক্ষের কমান্ডারকে কিংবা তাদেরকে এলিমিনেট করার জন্য স্নাইপার দেখিয়েছিলাম, সেই স্নাইপারের একটা উন্নত ভার্সন সাকো TRG-42 ফিনল্যান্ড থেকে এই বন্দুককে ইম্পোর্ট করা হয়। আর এই ইম্পোর্টের ফায়ার পাওয়ার অত্যন্ত শত্রুপক্ষের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। হ্যান্ড গ্রেনেড, এই হলো হ্যান্ড গ্রেনেড। স্যার ইকুইপ তো নেই, ডামি হ্যাঁ হ্যান্ড গ্রেনেড। ক্লোজ কোয়ার্টার ব্যাটল কিংবা CQB যাকে বলে, ক্লোজ রেঞ্জে যখন ব্যাটল হয় সেই ব্যাটলে এই গ্রেনেড ইউজ করা হয় दुश्मन पक्ष किंवा शत्रु पक्ष के नास्तानाबूद करार जন্য। सर ये ग्रेनेड का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है, और राइट वे क्या है? सर एक्चुअल जो ये ग्रेनेड है ये आप डिफेंसिव ऑफेंसिव दोनों में यूज कर सकते हो। बाकी ज़्यादातर इसका इस्तेमाल CQB रोल में, क्लोज कोलाटरल बैटल में ज़्यादा कारगर है सर। ये अटैक और डिफेंस में भी कारगर है। ये एक গ্রেনেড, একটা গ্রেনেড থাকলে আপনি হাতে লঞ্চ করতে পারেন, কিন্তু আপনার কাছে একের বেশি গ্রেনেড আছে, একাধিক গ্রেনেড আছে। ধরুন আপনার কাছে একসঙ্গে 500টা গ্রেনেড আছে, কি করবেন? ग्रेनेड लॉन्चर। यही ग्रेनेड इस लॉन्चर से लॉन्च होता है? नहीं सर, ये हैंड ग्रेनेड है। ये हैंड ग्रेनेड है। हाँ।
ये हैंड ग्रेनेड है जो हाथ से फायर किया जाता है, और इसका ग्रेनेड वो आगे रखा है। वो ये है इसका ग्रेनेड, आरएक टाइप ग्रेनेड। ये लॉन्चर से होता है सर, कैसे होता है थोड़ा दिखाना सर। और ये दुश्मन को कितना रेंज तक ये घायल कर सकता है, कितना रेंज तक पहुंच सकता है? एक्चुअली सर इसकी 375 मीटर रेंज है, बाकी 400 मीटर अप्रोक्स। 400 मीटर में कोई भी एनिमी एलिमिनेट। बिल्कुल बिल्कुल सर, पॉइंट टारगेट, एरिया टारगेट दोनों में काम करता है। बढ़िया है। 40 mm মাল্টি শট গ্রেনেড লঞ্চার কিভাবে লোড হয়, কিভাবে লঞ্চ হয় দেখলেন। এবার আসি সুইজারল্যান্ডের কিছু এবং ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার কিছু ওয়েপন নিতে। সুইজারল্যান্ড এবং ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, ইসরায়েল, ফিনল্যান্ডের থেকে আমরা ওয়েপন্স প্রকিউরমেন্ট করি, অর্থাৎ আমরা হাতিয়ার, আর্মস কিনি, যাতে আমাদের ভারতীয় সেনার ফায়ার পাওয়ার आरो बेटर है। सर ये कौन सा राइफल्स है और किस किस में यूज होता है? सर ये SMG MP9 स्मॉल मशीन। यस सर, इसकी रेंज है सर 200 मीटर, और ये भी सर एक CQB रोल में यूज होने वाला हथियार है। इसका जो रेट ऑफ फायर है सर वो है 1100 राउंड पर मिनट। 1100টা বুলেট প্রতি মিনিটে এই বন্দুক থেকে ফায়ার করতে পারে। একদম কাছের পরিধি, ক্লোজ কোয়ার্টার ব্যাটলে এই বন্দুক অত্যন্ত फायदेमंद भारतीय सेना জন্য। सर अब इस पे आता है 7.62 mm SIG, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बना हुआ। अब अमेरिकी बंदूक है तो सवाल तो उठेगा, कैसा है बंदूक सर? काफी अच्छा है सर राइफल। इसका क्या खासियत है? इसका सर खासियत है 500 मीटर तक दुश्मन को बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। और इसका फायर पावर सर? फायर पावर है सर 650 से 850 राउंड। ऑटोमेटिक वेपन है सर ये। অটোমেটিক ওয়েপন, মিনিটে 650 থেকে 800, 850 রাউন্ড গুলি এক মিনিটে এই বন্দুকটি, এই SIG ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার এই SIG ফায়ার করতে পারে। আর 700 থেকে 800 মিটার রেঞ্জে যে কোনো রকম টার্গেটকে একেবারে নাস্তানাবুদ করার জন্য এটা একেবারে ইকুইপড। सर ये SIG देख लिए, ये कौन सा है सर? सेम SIG है। अब आता है सर इजराइल का ये नेगेव LMG है, लाइट मशीन गन है। सर इसका डिफरेंस क्या है ये इस गन में और हमारा जो LMG पहले देखा था, डिफरेंस क्या है? सर एक्चुअली जो नेगेव LMG है इसमें रेंज बढ़ गया है, अभी 800 मीटर रेंज हो रहा है, और सर इसका रेट ऑफ फायर काफ़ी हैवी है। और इसमें सर जो हमारे पास है पहले इंसास LMG था, उसमें 30 राउंड का मैगजीन था, लेकिन इसमें अभी 120 राउंड का असाल्ट ड्रम दिया गया है। मैगजीन नहीं है सर, ये असाल्ट ड्रम है। 120 राउंड के बेल्टेड एमिनेशन आता है इसमें। और ये कितना मीटर तक चलता है? इसका रेंज है सर 800 मीटर, और इसमें एक हाइड्रोलिक बफर दिया गया है जिससे ये बिल्कुल भी मतलब गन का काम करता है। बिल्कुल सर। অর্থাৎ একটা লাইট মেশিন গান যার ভেতর একাধিক বুলেট যায়, ড্রাম, ম্যাগাজিন নয়, ড্রাম থাকে, এবং একই সঙ্গে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান হিসেবেও ডাবল হয়ে যায়। অর্থাৎ মর্তে থেকে, ল্যান্ডে থেকে কোনো এরিয়াল টার্গেটকে সুন্দরভাবে এই লাইট মেশিন গান কিন্তু নাস্তানাবুদ করতে থাকে। ওয়েপনরি দেখলাম, এবার আসি মিসাইলস অ্যান্ড মটার্সে। মোটর মিসাইল স্যার ये क्या है? আমরা বড় মোটর দেখিয়েছিলাম, 80 mm মোটর দেখিয়েছিলাম, এবার দেখুন 51 mm মোটর। सर ये 51 mm का मोटर, ये क्या क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए होता है? नहीं सर, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायर के लिए यूज किया जाता है। ये जो रेंज सर? रेंज है सर इसका 1180 मीटर। ये माउंटेन्स में यूज होता है सर ज्यादातर। माउंटेन वॉरफेयर? यस सर, क्योंकि एनिमी जब माउंटेन में पहाड़ के या किसी चोटी के पीछे बैठ जाता है तो उसके लिए इनडायरेक्ट फायर करके उसको बर्बाद कर सकते हैं। और सर नेक्स्ट कौन सा है सर? हाई एक्सप्लोसिव 441D, इसके क्या करता है? सर ये जो आपके सामने लगे हैं, ये जो राउंड्स है, यस सर, ये 84 mm RL के राउंड्स हैं, जो सर जिसका टास्क और टारगेट अलग अलग है। चलिए राउंड्स तो दिखा दिया, पहले रॉकेट लॉन्चर देख लेते हैं। रॉकेट लॉन्चर যে কোনো অপারেশনে, যে কোনো জায়গায় এই রকেট লঞ্চার
অত্যন্ত ফায়দামান, অত্যন্ত এফেক্টিভ একটা ওয়েপন। রকেট লঞ্চার, এই হাই এক্সপ্লোসিভ যে অ্যান্টি ট্যাঙ্ক বম্বস হোক, স্মোক বম্বস হোক, ডুয়াল পারপাস এক্সপ্লোসিভ বম্বস হোক, এই শেলগুলোকে লঞ্চ করার জন্য এই रॉकेट लॉन्चर लगे। राणा साहब, ये रॉकेट लॉन्चर का कैपेसिटी कितना दूर तक लॉन्च होता है, थोड़ा जानकारी। एक्चुअली सर इसका मैक्सिमम रेंज है 2100 मीटर। इसके हथियार की रेंज नहीं, इसका रेंज राउंड पे होता है। मतलब ये राउंड पे इसका रेंज होता है। यस सर। तो ये जैसे है एंटी टैंक Yes, sir. 751 स्वीडन का। सर इसका रेंज कितना है? इसका रेंज है सर 500 मीटर। तो अगर ये इसका अंदर जाएगा तो 500 मीटर तक जाएगा। सर ये कहाँ यूज होता है, फॉरवर्ड एरियाज में? बिल्कुल सर, ये फॉरवर्ड एरियाज में, प्लेन्स में ज़्यादा इसका, जैसे पहाड़ी में नहीं। बिल्कुल नहीं, पहाड़ी में भी सर इसका यूज़ है। इसके साथ एक राउंड है HE हाई एक्सप्लोजिव, जो सर एनिमी को एयर ब्रस्ट या ग्राउंड ब्रस्ट करके बर्बाद कर सकता है। রকেট লঞ্চার, হাই এক্সপ্লোসিভ ডুয়াল পারপাস বম্বস, আর এই বম্ব লঞ্চ করার জন্য ওই আরএল। পাহাড় হোক, সমতল হোক, দূরে হোক, কাছে হোক, শত্রুপক্ষকে নাস্তানাবুদ করার জন্য এই ওয়েপন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে একেবারে মজুত রয়েছে এবং তারা তৈরিও রয়েছে। ভারতীয় সেনার বীর জওয়ান সেকেন্ড রাজপুতানা রাইফেলস এর একটাই নারা, একটাই ওয়ার ক্রাই, বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা। আমার সঙ্গে যারা আছে তারা একটা জিনিসই মনে করেন, সামনে যদি শত্রুপক্ষ থাকে তাহলে তারা সামনে থাকলে সেই শত্রুপক্ষ আর বেঁচে ফিরতে পারবে না। এখানেই শেষ করছি আজকের এপিসোড। দেখতে থাকুন এনকে টিভি বাংলা। জয় হিন্দ।